میرے عزیزو، جو پڑھنا ہے پڑھو، جو کرنا ہے کرو، جدھر جانا ہے جاؤ، ایک اللہ ناراض نہ ہو، ایک اللہ کا نبی ناراض نہ ہو۔ یہ فلسفہ قرآن ہے، یہ فلسفہ اسلام ہے، یہ فلسفہ انبیاء کرام ہے کہ یہ امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں پیپر دے رہے ہیں، یہ پیپر موت پہ جا کے رزلٹ نکلے گا۔ منفی ہو گیا تو بتا دیا، مثبت ہو گیا تو تھوڑا سا بتا کے بات سمیٹتا ہوں۔ نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، سب سے زیادہ کیا چیز جھکائے گی؟ اخلاق۔ سب سے زیادہ کیا چیز جھکائے گی؟ اخلاق۔ زبان کا میٹھا بول، الفت بھرا بول، جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو، گالی سے بچو، الزام تراشی سے بچو، بہتان سے بچو، ہیرا پھیری سے بچو۔ اپنے اندر اور باہر کو خوبصورت بنایا اور یوں ہوا، اعلان ہوا کامیاب، پیپر ہاتھ میں آیا، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، یہ دیکھو میں پاس ہو گئی، یہ دیکھو میں پاس ہو گئی، یہ دیکھو میں پاس ہو گیا۔ اب ایک دم ایک تبدیلی آئے گی، ایک تبدیلی آئے گی۔ میں گیا اپنے قد کے ساتھ، آپ گئے 5 فٹ، 5.25، 5.5، 5.25، 6، 6.25، 4.5۔ جب اعلان ہوگا کامیاب ہو گیا تو لگیں گے جنت کے جوڑے پہناؤ، تو اب جنت کا جوڑا 5 فٹ کا نہیں ہے، جنتی 130 فٹ کی ہائٹ کے اللہ نے رکھی، 130 فٹ لمبا قد ہوگا۔ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا 130 فٹ، اما حوا کو پیدا کیا 130 فٹ۔ یہ بات تو سارے مجمع کو شاید معلوم ہوگی کہ یوسف علیہ السلام سب سے خوبصورت بنائے گئے، یہ بات شاید کم معلوم ہو کہ عورتوں میں سب سے خوبصورت حضرت حوا کو اللہ نے پیدا کیا، سب سے حسین حوا۔ دونوں اما ابا 130 فٹ کی ہائٹ ہے۔ یہ تو پھر ہم گھستے 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 ٹائم اور زمانے کی گردش یہ گھٹاتے 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 ہمیں یہاں لائی ہے۔ اصل قد 130 فٹ ہے، یہی واپس چلا جائے گا۔ جب اعلان ہوگا نا کامیاب ہو گئی، کامیاب ہو گیا، چند دن کا روزہ رکھ لو، چند دن کا روزہ ہے، چند صبحیں ہیں، چند شامیں ہیں، بیت جانی ہیں، خوبصورتی کے ساتھ بتاؤ گے تو آج اس کا صلہ کیا مل رہا ہے؟ اللہ کہے گا جنت کا جوڑا، تو اس کا یہ آپ نے دیکھا کرین میں سے ڈنڈا نکلتا ہے یوں ایسے، تو ایک دم اس کا قد یوں جائے گا اور 130 فٹ کی ہائٹ پہ جا کر یہ فکس ہو جائے گا۔ پھر اللہ اسے جنت کے 100 جوڑے پہنائے گا، پہنے گی پہنائے گا، پہنے گی پہنائے گا، اور پورے جسم سے بال غائب ہو جائیں، صرف سر کے بال، بھووں کے بال، پلکوں کے بال، ہلکی مونچھیں، اور باقی سارا جسم شیشہ، اور 100 جوڑے، اور جوڑے لا کے نہیں ہٹے کر کے توڑے اتے پاوے گا۔ ایک امر آئے گا تم دیکھو گے تو 100 جوڑے پہن چکے ہوگے، چونکہ 100 جوڑے خود پامنے پائے گئے تو موڈے تے رہ گئے نا پا کے۔ تو لہٰذا ہر کامیاب عورت، کامیاب مرد، ایک امر آئے گا، ایک بجلی کوندے گی، چمکے گی، اور 100 جوڑے ہوں گے عورت کے، مرد کے بھی، سر پہ تاج ہوگا، اور ایمان والی عورت کے سر کے بال سر کی چوٹی سے اتریں گے اور پاؤں کی ایڑیوں کا بوسہ لیں گے۔ اتنے لمبے اللہ تعالیٰ بال نصیب فرمائے گا۔ اگر ایک بال توڑ کے یہاں رکھ دو لاہور یونیورسٹی میں تو زمین سے لے کر آسمان تک خوشبو پھیل جائے گی، روشنی پھیل جائے گی۔ اللہ ایسا حسن عطا فرمائے گا، جوانی دے گا، بڑھاپا مر گیا، صحت دے گا، بیماری مر گئی، زندگی دے گا، موت مر گئی، نعمتیں دے گا، فقر و فاقہ مر گیا، محبتیں دے گا، لڑائیاں ختم ہو گئیں، کھانا پینا دے گا، پیشاب پخانا ختم ہو گیا، کھائے گا کوئی پاخانہ نہیں، پیے گا کوئی پیشاب نہیں ہے، پاک پاکیزہ، نہ تھو نہ بلغم، نہ نیند نہ اونگ نہ تھکن نہ تھکاوٹ، نہ عمر کے گزرنے کا کوئی۔ 5 نبیوں کی صفتیں، آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی،
दाऊद अलैहिस्सलाम की शीर ज़बान, अय्यूब अलैहिस्सलाम का दिल, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र, 6 भी हो गए, कहीं 5 हैं 6। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अखलाक, नबी वाले, मेरे नबी वाले अखलाक, ईसा अलैहिस्सलाम वाली उम्र 33 साल पे फुल स्टॉप लग जाएगा, टाइम ऑफ हो जाएगा। टाइम ऑफ हो जाएगा तो वक्त जो हमारे ऊपर असर डालता है वो असर खत्म हो जाएगा। तो 33 करोड़ साल के बाद भी 33 साल और 33 अरब साल के बाद भी 33 साल। और खाएगा हर लुक्मे की लज्जत पहले से ज्यादा, पिएगा हर घूंट की लज्जत पहले से ज्यादा। ये जन्नत का पानी है, उसमें ये डाला उंगली को और आसमान पे बैठ के उंगली को यूं कर दिया, इस तरी से जमीन से लेकर आसमान तक सारी कायनात में खुशबू फैल जाएगी। और जन्नत की सबसे आला दर्जे की शराब है तस्नीम। तस्नीम, बाकी सारे चश्मे चलेंगे, चश्मे चलें, जमीन पर चलेंगे, दरिया दूध का, दरिया शहद का, दरिया पानी का, दरिया शराब का। अल्लाह पिलाने वाला है, जल्दी ना करो, जल्दी ना करो, अल्लाह पिलाने वाला है। बल्कि अल्लाह ने एक जगह सूरह दहर में पीने पिलाने की 3 मजलिसें बयान की हैं। एक मजलिस है इन्नल अबरार यशरबून मिन कासिन कान मिजाजुहा काफूरा, एक हाथ में सुराही उठाएगा और दूसरे हाथ में जाम पकड़ेगा और यूं डाल के पिएगा। ये है 33 नंबर वाली जन्नत, 33 नंबर वाली जन्नत, 33 नंबर वाली सबसे अदना दर्जे की जन्नत है। कि वहां क्या होगा कि वहां खुद डाल के पी रहा है, यहां भी खुदाम होंगे, यहां भी खुदाम होंगे। फर्क बताने के लिए 3 दर्जे कि यहां डालेंगे पिएंगे। दूसरा दर्जा है वयुस्कौन फीहा कअसन कान मिजाजुहा ज़ंजबीला, वहां इन खुद नहीं डालेंगे, इनको नीचे है बूफे सिस्टम, आपे पौते आपे खाओ, ठीक। ऊपर वाला दर्जा है खुदाम सिस्टम, नौकर सिस्टम, नौकर डालेगा पेश करेगा, नौकर डालेगा। ये खादिम होंगे मोतियों की तरह चमकते हुए, वयतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून इज़ा रअयतहुम हसिबतहुम लुलुअम मनसूरा, मोतियों की तरह हसीन नौकर खुदाम पेश करें, फिर फरिश्ते पेश करें, फिर जन्नत की हूरें पेश करें। मेरे नबी ने फरमाया कि तुम्हें किन हाथों से जाम पकड़ाएगी कि उंगली का इतना हिस्सा अगर सूरज को दिखा दिया जाए तो सूरज नजर नहीं आएगा, तो चेहरा कैसा होगा? मेरे नबी ने फरमाया ईमान वाली औरत जन्नत की औरत से 70,000 गुना ज्यादा खूबसूरत होगी। और जन्नत की औरत का हुस्न मैंने ये बताया इतना। और 7 समंदर में थूक डाले तो 7 समंदर शहद से ज्यादा मीठे हो जाएं। उसको थूक आता नहीं, थूक तो ऐब है, एवं थोड़ियां राला कठियां कोठियां करके जोर जोर मार के थू थू करे तो अगर कोई एक आध कतरा भी समंदर में चला गया, कई साल हो गए समंदर का सफर हर साल हो जाता है, कहीं ना कहीं समंदर का सफर हो जाता है। जब मैं समंदर की वसतों में आता हूं तो मुझे हदीस याद आती है, या अल्लाह क्या बनाया है तूने, इतने बड़े समंदर और एक कतरा उसका एक राल उसके टपक जाए तो 7 समंदर शहद से ज्यादा मीठे हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीसरा दर्जा, आहा, अल्लाह हमें उसमें बना दे, आमीन तो कह दो। वो क्या है? वहां ना हूरें हैं, न फरिश्ते हैं, न नौकर हैं, न बूफे है। वहां है वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, वहां अल्लाह खुद पिला रहा हो। खुदा खुद मीर मजलिस बूद शब जाए कि मन बूदम अमीर खुशो, वहां अल्लाह होगा खुद पिलाएगा। वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। हाय 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 हाय, वो नीचे वाले कहेंगे यार तो ये किवें लग गया, वो खुद कहेंगे नीचे, वो कहेंगे या अल्लाह ये इतना प्रोटोकॉल हमें क्यों मिला, हमें क्यों मिला, आप खुद ही साकी बन गए। तो अल्लाह फरमाएगा इन्ना हाज़ा कान लकुम जज़ा व कान सअयुकुम मशकूरा, मैं देखता था तुम्हें, नाफरमानी में तुम फरमा बरदार थे, बदकारियों में तुम पाक दामन थे, हराम के चक्करों में तुम हलाल पे थे, गफलतों के देश में तुम बेदार थे, तुम्हारी रात मेरी याद में गुजरती थी।
आंसू बहाते, मैं देखता था आज तेरा रब साकी है, पी। अल्लाह अकबर। जन्नत के मिलने के बाद भी एक खला बाकी होगा, जब अल्लाह पर्दा हटा के सामने आएगा और अपना दीदार कराएगा, बस वही काम हो जाएगा। और एक आपको अजीब बात बताऊं, आप जन्नत के नेमतों को देखेंगे इन दो आंखों से, आप जन्नत के नगमे सुने। अल्लाह जुनैद जमशेद की मगफरत फरमाए, मुझसे एक दफ़ा कहने लगा, हम जो गाना तैयार करते हैं ना वो 3.5 मिनट का होता है, 3.5 मिनट, और उस पर भी हमें महीना लग जाता है, इससे भी ज़्यादा लग जाता है। मैंने कहा 4 मिनट भी नहीं, 3.5 क्यों? कहने लगा बोर हो जाते हैं लोग, इतना लंबा सुनते नहीं, बोर हो जाते। मैंने कहा जन्नत में जब अल्लाह महफिल मौसीकी सजाएगा ना, महफिल मौसीकी सजाएगा, तो पहला नगमा 70 साल का होगा। 70 साल वो होगा जन्नत की हूरों से। अल्लाह कहेगा जन्नत की लड़कियों से, ये मेरे बंदे आए हैं, ये दुनिया में नहीं सुनते थे, आज इन्हें सुनाओ। तो जन्नत की लड़कियों की आवाज होगी और जन्नत के दरख्त साज बनेंगे और हवा म्यूजिक डायरेक्टर बनेगी। हवा उन्हें डायरेक्शन देगी और उन हवा की, उसका नाम है मुसीरा, हवा का नाम मुसीरा, म्यूजिक डायरेक्टर मुसीरा। वो दरख्तों के पत्तों को इस तरह हिलाएगी कि हर दरख्त, हर टहनी, हर शाख, हर पत्ते से वो धुन निकलेगी जो दूसरे से जुदा होगी और आपस में मिक्स नहीं होंगी। हर धुन की लज्जत अलग सुनोगे। उसके साथ जन्नत की लड़कियों का गाना होगा, 70 बरस तक बैठे सुनते रहोगे। मेरे रब की इज्जत की कसम, ऐसे बैठे हो ना तो यूं नहीं हो सकोगे, यूं बैठे हो तो ऐसे नहीं हो सकोगे, ऐसे हो तो सीधे नहीं हो सकोगे। इतना अल्लाह उसमें तुम्हें मजा देगा, गुम हो जाओगे। फिर अल्लाह कहेगा कैसा है? कजुआ चासा, हमारे पंजाबी में कहते हैं चासा। तो अल्लाह कहेगा इससे अच्छा सुनो। कहेंगे अच्छा वो क्या है? तो अल्लाह कहेंगे या दाऊद, दाऊद आओ बैठो, ये मेरे बंदे बंदियां हैं, इन्हें आज खुश करो। इस कायनात में सबसे सुरीली आवाज दाऊद अलैहिस्सलाम, जब वो ज़बूर पढ़ते थे तो पहाड़ हिलते थे, पहाड़, जंगल के जानवर बाहर निकल आते थे और बैठ के सुनते थे, इतनी आवाज थी। वो कहेंगे या अल्लाह वो तो दुनिया में थी। कहा मैंने वापस कर दी कई गुना। अब दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज और जन्नत का साज जन्नत वालों को जन्नती भूल जाएगी। फिर अल्लाह फरमाएंगे कैसा? कहेंगे मजा। कहेंगे इससे अच्छा सुनाओ। तो वो क्या है? तो अल्लाह कहेंगे या हबीबी या मोहम्मद, ए मेरे हबीब, हबीबुल्लाह, ए मेरे हबीब, आइए महफिल को रौनक बख्शिए। हाँ, मेरे नबी की आवाज, जन्नत का साज, जन्नत के दरिया भी थम जाएंगे हमारे नबी की आवाज को सुनकर। और अपना आप जन्नती, पहले जन्नत भूले थे, अब अपना आप भुला बैठे। फिर उनकी बारी खत्म होगी तो अल्लाह फरमाएंगे अब इससे अच्छा सुनाऊं। अल्लाहू अकबर, अब इससे अच्छा सुनाऊं। कहने यार नहीं, इससे अच्छा क्या हो सकता, इससे अच्छा क्या हो सकता? कहेंगे लम यब्का इल्ला अरहमुर राहिमीन, अब तुम्हारा रब आएगा, वो तुम्हें सुनाएगा। अब अरहमुर राहिमीन की बारी है। अब 2 तब्दीलियां आएंगी फिजिकली। हम कानों से सुन रहे थे, आंखों से देख रहे थे। जन्नत की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह को आंखों से देखना। अल्लाह यूं पर्दा हटाएगा, ये तो मैंने वैसे ही हाथ का इशारा कर दिया, वो तो हर चीज से पाक है, उसके लिए ना कोई तशबीह है ना कोई तमसील है, वो बिला तशबीह है बिला तमसील है। ऐसे पर्दा हटेगा तो जब अल्लाह सामने आएगा, हाय एक बोल सुना दूं फिर बताता हूं कि कैसे देखोगे। ये सब नेक लोग, नेक बंदे बंदियां, नमाजी, तहज्जुद गुजार, रोजेदार, मुजाहिदीन, मुबल्लिगीन, उलमा, औलिया कराम, सालेहीन सब मौजूद हैं। लेकिन अल्लाह क्या टाइटल दे के पुकारेगा, क्या टाइटल दे के पुकारेगा? जब
पर्दा हटेगा तो सबसे पहले अल्लाह फरमाएगा मरहबा बिस्सादिकीन। आपका रब सच्चे बंदों को मरहबा कहता है। सच, मैंने बयान शुरू यहां से किया था, सच्चाई, दयानतदारी, पाकदामनी, इंसाफ जिस कौम में होगा उनके झंडे लहराते रहेंगे। झूठ, धोखा, बदकारी, फहाश, जुल्म जिस कौम में होगा उनके झंडे हमेशा सब नुगो रहेंगे। पूर्व पश्चिम की हवाएं भी उन्हें उड़ा न सकेंगी। जिल्लत, पस्ती मुकद्दर होगी। आज अल्लाह ये नहीं कह रहा मेरे नमाजी आ गए, कहेगा मेरे सच्चे बंदे आ गए, मैं मरहबा कहता हूं। अब सुनो, अब ये जो आप अल्लाह को देखोगे ना, ये आंखें नाकाफी हैं, नाकाफी हैं, ये इहाता नहीं कर सकते। इहाता तो फिर भी नहीं हो सकेगा। हमारे जिस्म में कोई खरब सेल्स हैं और हर सेल में हर चीज बनने की अल्लाह ने ताकत रखी है। यहां भी आंख बन सकती है, यहां कान बन सकता है, हर सेल। और जो तुम्हारे डॉक्टरों की बात है 10 खरब कमोबेश ज्यादा, ये अंदाजा ही है, इससे भी ज्यादा होगा। 10 खरब का मुझे लफ्ज याद पड़ता है। 10 खरब सेल्स ईंटों से हमारा जिस्म बना है। जब अल्लाह सामने आएगा, ये आंख नहीं, हर सेल को अल्लाह आंख की ताकत देगा और आप पूरे जिस्म से अल्लाह को देखोगे, पूरे जिस्म से। खूबसूरत शक्ल आंखों में आती है तो अंदर तक चली जाती है। जब सारे वजूद से अल्लाह का नूर अंदर जाएगा तो क्या हाल होगा। और जब अल्लाह अपना अब अल्लाह क्या सुनाएगा, अब अल्लाह कुरान सुनाएगा, अल्लाह कुरान सुनाएगा, कुरान सुनाएगा। अब ये तुम्हारे कान नहीं सुनेंगे, सर से लेकर पांव तक जितने सेल्स हैं सब में अल्लाह कान की ताकत पैदा करेगा। तुम्हारी पूरी बॉडी अल्लाह के कुरान को सुनेगी, अल्लाह के कलाम को सुनेगी। फिर अल्लाह एक एक का नाम लेकर कहेगा क्या हाल है, खुश हो, राजी, ठीक हो, राजी हो, खुश हो, कोई तकलीफ। एक मर्द औरत एक 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 सबका नाम लेकर फिर अल्लाह कहेगा खुश हो, कहेंगे अल्लाह बड़े खुश। अल्लाह कहेगा जन्नत के मजे, कहो बड़े। तो अल्लाह ताला फरमाएगा जन्नत से बड़ी चीज दूं, मैं तुम्हें जन्नत से बड़ी चीज दूं। कहेंगे या अल्लाह इससे बड़ी क्या चीज है। तो अल्लाह कहेंगे जाओ मैं राजी हो गया, चलो मौज करो।